السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً سب ٹھیک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ تو آج کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میری باقی ناول پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کو میری چینل کی پلے لسٹ میں جانا ہوگا، وہاں پہ آپ کو بد کردار، میرا ستمگر اور جنون تیری عشق کا جو کہ پریویس ناول تھا، جو کہ بہت ہٹ تھا، جو کہ بہت خوبصورت کہانی ہے، شاویز حجاز شاہ، شاویز شاہ اور برہان خان، حیضل شاہ اور جازم شاہ کی کہانی، جو آپ کو بہت خوبصورت لگے گی، جس میں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ ایک خوبصورت الگ کہانی ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی، تو آپ لوگ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ایپیسوڈ میں اپنا ریویو دینا مت بھولیے گا، ایپیسوڈ کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ کل میں نے لائک کرنے کا نہیں کہا تو آپ لوگوں نے لائک نہیں کیا، آپ لوگوں کو میں نے کمنٹس کرنے کا نہیں کہا تو آپ لوگوں نے کمنٹس نہیں کیا، تو پلیز سب کمنٹس کیا کریں۔ تو میں امید کروں گی کہ آج کی ایپیسوڈ میں آپ سب کے کمنٹس آئیں گے، بیکاز آج کی ایپیسوڈ میرے خیال سے تو بہت اچھی ہے، بیکاز پریویس کچھ ایپیسوڈ سے اب ناول آگے بڑھ رہا ہے، تو جی ہر روز ہوگا ایک نیا دھماکہ، ہر قسم میں ہوگا ایک نیا دھماکہ، کیونکہ ہونے لگی ہے شروعات ہر قسم کے سچ سے پردہ اٹھنے کی۔ تو اب آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہر قسط میں آپ کو ایک نیا دھماکہ، ایک سچ ریویل ہونے کا ملے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی وہ کس پر ہوگی آپ گیس کر سکتے ہیں۔ جو گیس کر سکتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک چھوٹی سی خوشخبری بھی آپ کو ملے گی، اور اس کے علاوہ نیکسٹ ایپیسوڈ ہو سکتا، نیکسٹ ایپیسوڈ بی زران ابرش اور ارحام خان زادہ اینڈ حور پہ ہو سکتی ہے، اور یا پھر بہارے اور شہرام پہ ہو سکتی ہے۔ تو جی پھر کمنٹس میں اپنا ریویو دینا مت بھولیے گا، پلیز حوصلہ افزائی کیا کریں، اور خاموش ریڈر سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پر وقت اور بآسانی مل سکے، اور آپ کی رائٹر موٹیویٹ ہو سکے۔ رمز عشق تحریر نور آصف ابرش زمین کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی سٹل سی چھت کو گھور رہی تھی۔ باربینا کھانے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا، ابرش نے اسے دیکھتے بغیر سپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ ہی کا نقصان ہوگا، یہاں کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا بچہ کے مرنے کے بعد امینہ خانم زران لالا کی دوسری شادی، بھابھی آپ کو کھانا کی ضرورت ہے، تھوڑا سا کھا لیں، ایسے میں آپ ہی کا نقصان ہوگا، یہاں کسی کا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا بچہ کے مرنے کے بعد امینہ خانم زران لالا کی دوسری شادی کرنے کا فیصلہ پر پکا ہو چکا ہے، اور زران لالا ابھی امینہ خانم کے پاس ہی تھا۔ امینہ خانم کو کہہ کر گیا ہے وہ ان کا دوسرا شادی کا تیاری کریں، انہیں آپ جیسا منہ پھٹ بدتمیز عورت کے ساتھ نہیں رہنا، وہ سکون کو ترس گیا ہے۔ پاربینہ کی بات پر ابرش نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ زران نے یہ کہا، تمہارے سامنے کہا؟ ابرش نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ زران کے لفظوں کی باز گشت سنائی دی تھی۔ خودکشی کرنے جا رہا ہوں، اگر بچ گیا تو تمہارے پاس نہیں آؤں گا، پلویشا کے پاس جاؤں گا، شاید سکون مل جائے۔ پاربینہ تو یہی کہہ رہی تھی، وہ سکون کو ترس گیا ہے۔ ابرش نے آنسوؤں کی چادر سے پاربینہ کو دیکھا تھا، سب کچھ دھندلا سا نظر آ رہا تھا، آنکھوں کے آگے سیاہ چادر کی جیسے دیوار کھڑی تھی۔ ہاں بھابھی، ہمارا سامنے کہا، بلکہ حویلی کا ہر فرد کے سامنے کہا۔ سب تو ادھر ہی موجود تھا، وہ پلوشا، امینہ خانم، زینہ خانم، حویلی کا ہر ملازمہ، سب ادھر ہی موجود تھا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائے سب کے نام گن رہی تھی۔ وہ تھی بھی تو بہت معصوم، بمشکل 16 سال کی، کم عمر اور معصوم۔ لیکن تم فکر نہ کرو، ہم کو لگتا ہے زران لالا غصے میں تھا، ایسا کہہ گیا۔ تمہارا بھی تو لالا سے لگتا نہیں ہے، تم یہ کھانا کھاؤ۔
सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ है भी कोई नहीं, इसलिए तुम्हारा साथ ऐसा सलूक होता है। भाभी तुम्हारा घर वाला कहाँ है? बारबीना ने उसे तसल्ली देते अब बहुत मासूमियत से सवाल तका। उसका मासूमियत में किया सवाल अब्रिश के जख्म हरे कर गया था। वो कर्ब से सिसकी लेकर रह गई। मेरे घर वाले अब्रिश के लब कपकपाए थे। वो भी मुझे भूल गए हैं बारबीना। आज 5 माह हो गए हैं मगर मेरा किसी ने पता नहीं क्या, किसी को शायद मेरी परवाह ही नहीं, मुझसे मोहब्बत किसी को नहीं है। अब्रिश बुरी तरह रो दी थी। कोई गमगसार नजर आया था। जरान की बेवफाई का सोचते मरने वाली हो गई थी। लेकिन भाभी ये भी तो हो सकता है तुम्हारा घर वाला ही किसी मुसीबत में हो और तुम्हें ही ना पता हो। वरना ये कैसा हो सकता है तुम्हारा मोरे तुम्हारा अम्मा को तुम्हारा कभी याद ना आया हो। परवाना की बात पर अब्रिश अपने आंसू साफ करते ज़मीन से उठती बारबीना के मुकाबिल आई थी। तुम ठीक कह रही हो बारबीना, ये सोच मुझे कितनी मरतबा आई है। मामा ने एक बार भी मेरा पता नहीं किया। वो सच में किसी मुसीबत में है। मेरा दिल कहता है मगर मैं कैसे उनके बारे में पता करूं। मैं क्या करूं? अब्रिश ने रोते हुए पूछा। वो रोते हुए एक बच्ची से सवाल कर रही थी। भाभी तुम फ़ोन कर लो, तुम्हारा घर वालों का नंबर तो होगा तुम्हारे पास। बारबीना ने मशवरा दिया। बारबीना ने मशवरा दिया था। हाँ, तुम्हारे पास फ़ोन है क्या? तुम मुझे दे सकती हो? अब्रिश ने तजाइया लहजे में कहते उसकी तरफ आंस भरी निगाहों से देखा। भाभी मैं दे देता है मोबाइल पर आप किसी को बताना ना। बारबीना की रंगत ये एकदम खौफ से जर्द पड़ी थी। तुम फिक्र ना करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब्रिश ने उसकी बात के जवाब में जल्दी से कहा। बारबीना ने अपनी शीशों वाली पठान फ्रॉक की जेब से फ़ोन निकाल कर अब्रिश की तरफ बढ़ाया। जिसे अब्रिश ने बेताबी से थामा था। अब्रिश ने जल्दी से जहले का नंबर डायल किया। वो बंद था। उसने अनाया और घर के लैंडलाइन का नंबर बारी बारी डायल किया मगर सभी बंद थे। अब उसने बेताबी से कांपते हाथों से आहिल का नंबर डायल किया। आहिल का नंबर ऑन था। अब्रिश के हाथों की कपकपाहट के साथ उसके दिल की धड़कन भी तेज हुई थी मगर आहिल का नंबर दो चार बेल की भांति बंद हो चुका था। काट दिया गया था। अब्रिश ने दोबारा से नंबर डायल किया। नंबर अब बन जा रहा था। अब्रिश परेशान हुई थी। आज से 4 माह पहले दरक्षा से मोबाइल लेकर भी सबके नंबर ट्राई किए थे, तब भी बंद थे और आज भी बंद थे। अ, मगर आहिल का नंबर ऑन था जो अब किसी ने बंद कर दिया था। अब्रिश के अब हाथ पैर कांपना शुरू हो चुके थे। उसे पूरा यकीन हो चुका था सब किसी मुसीबत है। अब्रिश ने अब सईम का नंबर डायल किया जो पहली बेल पर उठा लिया गया था। सईम मैं अब्रिश अब्रिश ने जल्दी से कहा। अब्रिश सईम की आवाज़ में हैरानगी थी। वो भरपूर चौंका था। पास खड़ी बारबीना उंगली दांतों में दबाए बहुत मासूमियत से उसे देख रही थी। ज़हीन मामा अनाया आहिल कहाँ हैं? उनके नंबर क्यों बंद हैं और लैंडलाइन भी ऑफ है? सब ठीक तो हैं? अब्रिश ने एक ही सांस में पूछा था। अब्रिश तुम्हें कुछ नहीं पता, ज़हीन की हैरान आवाज़ से पीकर पर गूंजी। कुछ नहीं पता क्या हुआ है ज़हीन? अब्रिश के लहजे के साथ हाथों की कपकपाहट भी पड़ी थी। अनाया आज से 4 माह पहले किडनैप हो चुकी है। ज़हीन की बात पर अब्रिश के कदम लड़खड़ाए थे। बारबीना ने आगे बढ़कर जल्दी से उसे संभाला वरना वो ज़मीन बोस हो जाती। ज़हीम ये तुम क्या कह रहे हो? अब्रिश ने कांपते लहजे में पूछा। अब्रिश अनाया किडनैप हो चुकी है और इसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं तुम्हारा शौहर है। ज़हीम की बात पर वो आंधियों की जद में आई थी। अगर बारबीना ने उसे थामा ना होता तो वो अब की बार ज़मीन बोस हो जाती। क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो तुम? वो ऐसा क्यों करेगा? अगले ही लम्हे वो हलक के बल चुकी थी। वो जड़ गवार हो सकता था मगर सफाक नहीं, ये नहीं कर सकता था। अब्रिश
आहिल ने बाबरिक को मारा है, ये सच है। उसका बदला लेने के लिए ज़रान खानज़ादा ने अनाया को किडनैप कर लिया। वहाँ से भागी और मुझसे निकाह करने जा रही थी। उसने सबका बदला भी लिया है। इसने मुझे भी मारने की कोशिश की है। मैंने बहुत मुश्किलों से अपनी जान बचाई है। मैं आज भी इससे छुपता फिर रहा हूँ और तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें भी तो ज़रान किडनैप करके लाया था। उसके लिए ये सब बहुत आसान है। वह मज़ाज बंदा है, दिल में बात रखने वाला। वो इतनी आसानी से कुछ नहीं बोलता। मुझे यकीन है उसका सलूक तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। ज़हीम की बातों पर अब्रिश ने अपने पेट पर हाथ रखा था। सच ही तो कह रहा था, वो सच में सफ़ाक था। अपने बच्चे को मारने से बढ़कर सफ़ाकी क्या हो सकती थी भला? आंखों से बहते गर्म स्याल में इजाफा हुआ था। आज फिर पहलू में दर्द महसूस हुआ था। बच्चा खोने के दर्द की ऐंठन फिर से महसूस हुई थी। पागलों की तरह अपने पेट पर हाथ रखकर सिसकने लगे। खुद ही सोचो, और किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है अनाया से पुप्पो से? सैली पुप्पो ने खुद हमें ये बात बताई है। बेचारी इस गम में पिछले 4 माह से कोमा में है। आहिल का भी कुछ पता नहीं है। ज़हीम पता नहीं और क्या कह रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फ़ोन उसके हाथों से गिर चुका था। बारबीना ने जल्दी से फ़ोन ज़मीन पर गिरा फ़ोन उठाया, जिस पर एक स्क्रैच भी नहीं आया था। अबरी ज़मीन पर घुटनों के बल गिरते फूट फूट कर रो दी थी। ज़रान खानज़ादा ने अनाया को किडनैप किया। उसका दिल नहीं मान रहा था। लेकिन अगर ये सच नहीं था, तो उसने अनाया के किडनैप होने की बात उससे क्यों छुपाई? वो इससे सबसे राब्ता करने से क्यों मना करता था? जहले की कंडीशन के बारे में क्यों नहीं उसे बताया? अबरी ज़मीन पर घुटनों के बल बैठी फूट फूट कर रो दी थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ज़रान? अबरी बाल मुट्ठियों में जकड़े चीखी थी। मैं बहुत मुंतकम मिजाज बनता हूँ। जब तक बदला ना ले लूँ चैन से नहीं बैठता। सरान के लफ्ज़ उसकी समातों में गूंजे थे। मुंतकम मिजाज बंदा तो वो था। उसने उससे हर चीज़ का बदला ले लिया था। अब्रिश ने अपने गालों पर हाथ रखे जहाँ जरान के थप्पड़ों की चलन थी। उसे आज भी महसूस होती थी। जरान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पागलों की तरह चीखी थी। या तुम ही ये सब कर सकते हो? जो इंसान अपने बच्चे को मार दे वो कुछ भी कर सकता है। अब्रिश अपने आंसू साफ करते गहरे सांस लेते चीख उठी। भाभी क्या हुआ है? बारबीना अब्रिश की तरफ बढ़ी थी। उसकी मासूम बड़ी बड़ी आंखों में नमी थी। बारबीना, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम्हें खुदा का वास्ता इनकार मत करना। अब्रिश ने उसके आगे हाथ जोड़े। बोले, भाभी हमसे जो हो सका हम ज़रूर करेगा। बारबीना ने पुरअज़्म लहजे में कहा। बारबीना, किसी तरह मुझे इस हवेली से निकाल दो। अब्रिश रोते हुए बोली। लेकिन भाभी हम कैसे? बारबीना ने मासूमियत से परेशानी से सवाल किया। बारबीना, ज़रान हवेली नहीं है, ना ही उसका लाला हैदर। शहराम भी अस्पताल होता है। मुश्किल नहीं होगा यहाँ से निकलना। अगर ज़रान आ गया तो उसे खबर होगी मुझे सब कुछ पता चल गया है। वो मुझे कभी यहाँ से निकलने नहीं देगा। वो मुझे कैद कर लेगा। खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकलने में मदद करो। अब ये लजाया लहजे में बोली। भाभी, कह तो तुम ठीक रहा है। इस वक्त हवेली में कोई नहीं है, सिर्फ दाजी हैं। वो भी मर्दाने में अपना कमरे में हैं। और सब
सब अपने-अपने कमरों में चला गया होगा, रात भी तो बहुत हो गया है। बारबीना पुरसोच अंदाज़ में बोल रही थी। भाभी हम तुमको हवेली के पिछले दरवाज़े से निकाल सकता है, मगर कोई गाड़ी नहीं है, तुम आगे से कैसे जाओगी? बारबीना की बात पर अब ऋषि ने जल्दी से आँसू साफ किए थे। तुम मुझे इस हवेली से निकाल दो, मैं देख लूँगी, यहाँ कहीं से तो गाड़ियाँ इस्लामाबाद की तरफ जाती होंगी। मुझे पैदल रास्ता गाइड कर दो, मैं एक बार यहाँ से निकल गई, मैं इस्लामाबाद जाकर अपनी एम्बेसी को कॉल कर दूँगी, फिर इस ज़हरान खानज़ादा को मेरी एम्बेसी ही देखेगी। एक-एक बात का बदला लेगी। अब अब्रिश बादशाह इन खानज़ादों से कहीं का नहीं छोड़ेगी। अब्रिश बादशाह इन खानज़ादों को अब ये मुँह छुपाते फिरेंगे। अब्रिश अटल लहजे में गर्राई थी। अब्रिश ने अलमारी की तरफ बढ़ती अपनी बड़ी सी चादर निकाल कर अपने गिर्द अच्छी तरह ओढ़ी। भाभी ये मोबाइल रख लो अपना पास, तुम्हारा काम आएगा, तुमको इसका ज़रूरत पड़ सकता है। बारबीना ने उसे अपना मोबाइल पकड़ा। बारबीना मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब रिश्ना आंखों से वो मोबाइल पकड़े तो शुक्राना लहजे में बोली, भाभीना तुम्हारे पास कुछ पैसे भी होंगे? अब्रिश ने नम आवाज़ में कहा, हाँ भाभी हैं। भाभीना ने अपनी शर्ट के गले में हाथ डालते चंद हजार के कुछ नोट उसे पकड़ाए थे, जिसने अब्रिश ने तशक्कुर के साथ थाम लिए। जिसे अब्रिश ने पकड़ते अपनी मुट्ठी में दबोचे थे। अब्रिश तेज तेज कदमों से ऊंचे नीचे रास्तों पर दौड़ रही थी। पहाड़ों के दरमियान सड़कें ऊपर नीचे भी नहीं थी। वो पागलों की तरह इन रास्तों पर भाग रही थी। हो रही थी। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। रात सर्द और गहरी तारीख थी। मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। उसने रुकते हुए हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा, जो चादर के नीचे से भीग रहा था। मुट्ठी में दबे पैसे भी गीले हो चुके थे। अब्रिश ने मोबाइल को चादर में छुपाने की कोशिश की, मगर बारिश बहुत तेज थी। मोबाइल फिर भी भीग रहा था, मगर वो अभी तक बिल्कुल ठीक था। वो हैरान भी हुई, मोबाइल को कुछ क्यों नहीं हुआ। उसने मोबाइल गले से शर्ट के अंदर डालते उसकी हिफाजत करने की कोशिश की थी। वो फिर से अब इन रास्तों पर भागने लगी। बारिश के ज़ोर के साथ उसकी आंखों में बरसते आंसू भी ज़ोरों पर थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था ज़रान ने ये सब किया, मगर सारे फैक्ट उसी की तरफ जा रहे हैं। होता था वो सच में सफाक था। उसकी रिसर्च आज से ही साबित हुई थी। खानज़ादा बहुत बेरहम होते हैं, मगर वो फिर भी अपने दिल में उसके लिए नफरत महसूस नहीं कर पा रही थी। उसकी अनाया 4 माह से ज़रान की कैद में है। अब ऋषि रुकते हुए अपने चकराते सर को थामा था। ज़रान की सफाकी उसकी जान ले रही थी। उसने बड़ी सी चादर अपने वजूद पर अच्छी तरह ओढ़ी। वो इस चादर में छुप नहीं रही थी, बल्कि खुद को छुपा रही थी। उसे ज़रान की तरह इस पर्दे से भी मोहब्बत हो गई थी। अब मरते दम तक इस चादर का साथ नहीं छूटना था। वो स्याह चादर में लिपटे भाग रही थी। अब वापस कभी भी उसे इस सफाक इंसान की पनाहों में नहीं आना था। अब ऋषि ने अपने पेट पर हाथ रखा। वो फिर से फूट फूट कर रोती थी। उसे अपना बच्चा जान से ज्यादा अजीज था, मगर वो उसे खो चुकी थी। उसी सफाक इंसान की वजह से वो अपना बच्चा खो चुकी थी। अब ऋषि ने अपने पेट पर हाथ रखकर आसमान की तरफ देखा। काश ये बारिश का जोर आज उसकी जान ले ले। उसकी कपाते लबों ने जैसे इल्तजा की थी। ऐसे ही ठंडे बर्फ के मौसम में सफाक इंसान की खुशबू से पहली मर्तबा अपने हवासों पर छाते महसूस हुई थी, जब उसने अपनी मनमानी करते बड़े धड़ल्ले से उसे अपनी गोद में उठाया था। उस दिन वो उसके हवासों पर सवार हो गया था। पहली मर्तबा कोई मर्द करीब आया था। वो गोद में उठाए सीने के साथ लिपटा गया था। महरम नहीं था, मगर महरम जैसा हक जता गया था।
लम्स दिल में ऐसा धड़का कि दिल की धड़कनों में धक धक की जगह सरान सरान गूंजने लगा। तुम नहीं हो मगर तेरा एहसास है, मगर दिल की दीवारें सुनी, क्या तुम्हें इसकी खबर है? दिल की राहों में जाने कितने मोड़ आए, अजनबी से लगते हैं। सितमगर को क्या कभी भूल पाएगी, दिल ने सवाल किया था। जवाब नफी में आया था। वो अपनी पाशा थी, मोहब्बतों की तरसी हुई लड़की। वो अपने रिश्तों से कभी नफरत कर ही नहीं सकती थी। जानती थी ये नामुमकिन है। वो उसे कभी नहीं भूल सकती थी। उसने जितनी झूठी मोहब्बत दी थी, वो उसके लिए अब सब कुछ थी। वो आसमान की तरफ देखते फूट फूट कर एक बार फिर से रो दी। मैं पलवशा से शादी करूंगा मोरे, मैं वादा करता हूँ आपसे। सरान के लफ्ज उसकी समायतों में गूंजे थे। वो बरसती बारिश में फिर से रो दी थी। जा डगर छोड़ आई, तुम रखो अपनी यादें, मैं अपना कुछ सोचूंगी। रोते रोते हंस पड़ी थी। उसने बरसती आंसू बेदर्दी से अपनी आरिस से साफ किए। मैं वादा करती हूँ मिस्टर खानजादा, तुम्हारे जुल्म का हिसाब मैं तुमसे लेकर रहूंगी। तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से लूंगी। अब्रिश पाशा के कहर से अब तुम बच नहीं सकोगे। ये वादा है तुमसे। अब्रिश ने स्याह तड़स स्याह तारीख सड़क पर भीगते हुए खुद से वादा किया था। वो तेज तेज कदमों से फिर से भागने लगी। वो भागते भागते बहुत आगे निकल आई थी। अब स्याह तारीख सड़कें, गहरी खाइयां और इतराफ में पहाड़ नजर नहीं आ रहे थे। रोशनियां नजर आ रही थी। अब्रिश ने एक ढाबा देखा जहां सिर्फ मर्द ही मर्द नजर आ रहे थे। मर्द ही मर्द नजर आ रहे थे। वो चारपाइयों पर बैठे चाय पी रहे थे। वो आगे बढ़ते इसी होटल की शेड के नीचे खड़े होकर गहरे सांस लेने लगी। शदीद नकाहत के बायस उसे चक्कर आ रहे थे। 2 दिन से खाना भी तो ना खाने के बराबर खाया था। इसी से कपकपाती अपनी चादर अच्छी तरह खुद पर लपेटी। बहुत से मर्द हजरात उसे सर्द निगाहों से घूर रहे थे। वो जल्दी से आगे बढ़ते तेज तेज कदमों से उसी होटल की बैक साइड पर आ गई। वहां पर कोई भी नहीं था। अब बारिश अभी भी हो रही थी, साथ ही बहते दरिया का शोर था। अब ऋषि गहरे सांस लेते चादर के अंदर हाथ डालते अपने गले से मोबाइल निकाला। बस सच शुक्र वो अभी भी चल रहा था। अब ऋषि ने एक बार फिर से आहिल का नंबर डायल किया जो बंद था। वो बेबसी से रो दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किसकी मदद ले। उसे एक बार सिर्फ बस स्टैंड तक पहुंचना था, मगर पहाड़ गहरी खाइयां ख़त्म ही नहीं हो रही थी। उसने कांपते हाथों से आहिल को टेक्स्ट किया था। आहिल, मैं अब्रिश हूँ, प्लीज़ जब ये तुम मैसेज देखो तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन करो। अब्रिश ने टेक्स्ट उसने टेक्स्ट लिखने के बाद वहां से गुजरते एक मर्द को पुकारा। उसने अब्रिश को घूर कर देखा था। अब्रिश उसकी सर नज़र पर नजरें झुका गई थी। बेशक चादर में लिपटी थी, मगर इतनी रात को एक औरत का यहाँ होना उस मर्द को पसंद नहीं आया था। यहाँ से बस स्टैंड कितना दूर है? अब्रिश ने मुंह छुपाते हुए पूछा था। यहाँ से बस स्टैंड बहुत दूर है, तुम इतना दूर नहीं जा सकेगा। जहाँ से आया है वापस चला जाओ। अपना इज्जत का नहीं तो अपना घर वालों का इज्जत का सोच लो। इतना रात को तुम औरत लोग को घर से निकलना जेब नहीं देता। जहाँ से आया है वहाँ से वापस चले जाओ, वो आदमी गुस्से से बोलता। चादर झटकता चला गया था। अब्रिश गहरी सांस लेते आगे बढ़ी। एकदम उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल गूंज उठा था। अब्रिश ने मोबाइल देखा तो आयल का नंबर जगमगा रहा था।
अब्रिश ने जल्दी से कॉल रिसीव करते फ़ोन कान से लगाया। हेलो आहिल, अब्रिश ने रोते हुए पुकारा था। अब्रिश, स्पीकर पर आहिल की नम आवाज़ गूंजी थी। आहिल, अब्रिश की लबों की कपकपाहट बढ़ी थी। अब्रिश, आहिल की आवाज़ भी जैसे हल्क में दम तोड़ गई थी। फ़ोन पर दोनों रो रही थी। 1 साल छोटा था उससे आहिल, मगर उन दोनों में बहुत प्यार था। ज़ेहली और पाशा का प्यार मिला ही नहीं था किसी को। इसलिए अब्रिश ने आहिल और अनाया को एक माँ की तरह प्यार किया था। मगर आज किस्मत किस मोड़ पर ले आई थी। वो 5 माह से एक दूसरे से दूर थे। एक दूसरे की कुछ खबर ना थी। साहिल, कहाँ हो तुम? मामा कैसी हैं मेरी अनाया? अब्रिश रोती हुई सिसक पड़ी थी। अब्रिश, मामा बिल्कुल ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और अनाया हमारी गुड़िया वापस आ गई है। आहिल की बात पर अब्रिश के कांपते हाथ की फ़ोन पर पकड़ मजबूत हुई थी। अनाया वापस आ गई है क्या? क्या कह रही हो? कैसे हुआ ये? ज़रान ने उसे छोड़ दिया। अब्रिश ने कँपकँपाते लबों से एक ही सांस में कई सवाल कर डाले थे। और फिर ज़रान भाई के हम पर बहुत से एहसानात हैं, अगर वो ना होते मैं आज ज़िंदा ना होता। अनाया को behज़ाद खान ने अगवा किया था। आज ही ज़रान भाई ने बताया कि अनाया को वो छुड़वा चुके हैं। अब तो वो तुम्हारे पास पहुंच चुकी होगी। आहिल उसे सब कुछ बताता चला गया था। उसका ज़रताज को भगाना, ज़रान का उसे बाबरिक से बचाना, बाबरिक की मौत, behज़ाद का अनाया का अगवा करना। वो साएं साएं कानों से सुन रही थी। अब्रिश, ये लो मामा से बात करो। अब फ़ोन पर ज़ेहले की आवाज़ गूंज रही थी। बोल ही नहीं पा रही थी। आँखों के आगे अंधेरा छाया था। ज़ेहली उसे मुसलसल पुकार रही थी। उसके लब हिलने से कांसे थे। पहाड़ों पर तारीकी के साए बढ़ते जा रहे थे। बिल्कुल वैसे जिसकी उसकी आँखों की तारीकी बढ़ती जा रही थी। वो फ़ोन हाथ में पकड़े फूट-फूट कर रो दी। फ़ोन पर ज़ेहली की मुसलसल आवाज़ गूंज रही थी। आवाज़ मुसलसल गूंज रही थी। उसे बेताबी से पुकार रही थी। वो फ़ोन हाथ में पकड़े वापस हवेली की तरफ भागी थी। अब वो पागलों की तरह भागते हुए हवेली के रास्ते की तरफ भाग रही थी, जिन रास्तों से गुजरकर वो ज़रान खानज़ादा की पनाहों से वापस जा रही थी। अब उन्हीं रास्तों से गुजरती वो ज़रान खानज़ादा की पनाहों में वापस जा रही थी। वो बेतहाशा रोते हुए पूरी कुव्वत से भाग रही थी। उसे ज़रान के वापस आने से पहले हवेली पहुंचना था। ज़रान, अब्रिश ने रोते हुए उसे पुकारा था। वो भागती जा रही थी। उसके कदम अब बहते दरिया के ठंडे पानी में उतरे थे। कुछ होश ना था। उसे तो वापस हवेली में जाना था, उस कमरे में जाना था, उस सितमगर की कैद में वापस जाना था। बारिश की आवाज़ ने बहते दरिया की आवाज़ को खौफनाक बना दिया था। उसके कदमों की छपाक पड़ रही थी। यकदम वो दरिया में मौजूद किसी बड़े से पत्थर से टकराई थी। मुंह के बल बहते दरिया में जा गिरी। उसने अपनी चादर को संभालते मोबाइल को बहते दरिया की नज़र होने से बचाया था। उसे अब समझ आई थी। ये मोबाइल अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ था? ये मोबाइल अच्छे ब्रांड का बहुत महंगा मोबाइल था, जिसके अतराफ में वाटर प्रूफ कवर था। उसे अंधेरी खौफनाक रात में शायद इस मोबाइल की ज़रूरत पड़ सकती थी। वो जल्दी से पानी से उठी थी। उसे हर हाल में वह हवेली वापस पहुंचना था। जानती थी वो दुश्मन जहाँ वापस आ गया तो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। इस सितमगर के लफ्ज़ उसकी समायतों में गूंजे थे। हमारे रिश्ते में बेयकीनी है। तुम्हारी इसी बेयकीनी से तुम हमारे रिश्ते को खो दोगे। आ गया था उनके रिश्ते में क्या कमी थी। उसे समझ आ गया था वो उसे सच कह रहा था। उसका पलवशा से कोई ताल्लुक नहीं था। वो सच कह रहा था। ज़हीम ने उसकी ड्रिंक में गोलियां मिलाई थी। वो सच कह रहा था। वो सच कहता रहा। जरान खान ज़ादा ने
आहिल को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी खतरे में डाली, अपनी बहन की खुशियाँ दाँव पर लगा दी, मगर आहिल का पता किसी को चलने नहीं दिया। वो सच्चा था, हमेशा से था। वो थोड़ा कड़वा था, मगर था सिर्फ़ उसी का। वो रोते हुए दरिया के बहते पानी से गुज़रते, पागलों की तरह भाग रही थी। बेवफ़ा तुम नहीं हो, बेवफ़ा हम नहीं हैं। अपनी किस्मत में शायद गम भी कुछ कम नहीं है। सच में अज्जड़ गँवार बेमहर था, मगर वो बेहिस नहीं था, वो शफ़ाक नहीं था, वो रिश्तों पर जान देने वाला इंसान था। वो सब समझ गई थी। वो रोते हुए भागती जा रही थी। उसका मोबाइल फ़ोन मुसलसल बज रहा था। आहिल का नंबर जगमगा रहा था। उसने येस का बटन दबाकर कॉल रिसीव ही की थी कि यकदम उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आन रुकी थी। तेज़ रोशनी से उसकी आँखें चिंधिया गई थीं। उसने आँखों पर हाथ रखा। गाड़ी से निकलता ज़हीम को निकलता देखकर उसने गुस्से से गहरे साँस लेते अपनी मुट्ठियाँ भींची थीं। अब्रिश, ज़हीम उसे पुकारते उसकी तरफ बढ़ा। वो 2 कदम पीछे हुई थी। अब्रिश, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। फूफो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं, वो आखिरी साँसें ले रही हैं। ज़हीम ने उसकी कलाई थामी थी। पूरी कुव्वत से उसके मुँह पर सन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया था। बारिश के शोर में उसकी थप्पड़ की गूंज काफ़ी गूंजदार थी। उसकी नाज़ुक उँगलियों का निशान ज़हीम के गाल पर छप गया था। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में वो निशान काफ़ी नुमाया था। हाथ रखे गज़्बनाक निगाहों से अब्रिश को घूर रहा था। वो गहरी सांस लेते जवाबन उसे शोलाबार निगाहों से घूर रही थी। खबरदार मुझे अपने गलीज़ हाथों से छुआ, जान ले लूँगी तुम्हारी। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। अब्रिश बपरी शेरनी की तरह कर रही थी। तुम आस्तीन में छुपे सांप निकले ज़हीम। शुक्र है मैंने उस दिन तुमसे निकाह नहीं किया। ज़नान का किस मुँह से शुक्र अदा करूँ जिसने तुम जैसे दरिंदे से मेरी जान छुड़वाई। की आँखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आए? इसका मतलब है बाबीना भी तुम्हारे साथ मिली हुई है। तुम पहले से यहाँ ही मौजूद थी। ये सोची समझी प्लानिंग थी। तुम लोगों ने मुझे ट्रैप किया। अब्रिश हलक के बल चीखी थी। तुम्हें ट्रैप किया नहीं, तुम ट्रैप हुई हो। हवेली से तुम्हें नहीं उठाया, तुम खुद ही हवेली से निकले हो। अपरिश तुम खुद ही बेवकूफ़ बन गई। ये मोबाइल तुम्हें इसलिए दिया ताकि तुम्हारी लोकेशन ट्रेस की जा सके। तुम इतना महंगा मोबाइल भी बारबीना के हाथ देखकर समझ नहीं सकी। ज़ई मुस्कुराते हुए गाड़ी के साथ टेक लगा गया। अब्रिश पर गहरी नज़र डाली। अब्रिश ने अपनी चादर मज़ीद अच्छी तरह खुद पर फैलाई। ज़ईम ने जानदार कहका लगाया, कोई फ़ायदा नहीं मेरी जान, आज सारे पर्दे उतार दूँगा। मैं मरा जा रहा हूँ। तुम्हारे हसीन तुम्हारे हसीन सरापे को बगैर किसी पर्दे के देखने के, जो सरापा कपड़ों में इतना खूबसूरत हो, बिना कपड़ों के कैसा होगा? ज़ईम ने कमीनगी से कहते हुए आँख मारी थी। अब्रिश ने गहरी साँस आते हुए उसकी तरफ बढ़ती उसके मुँह पर फिर से थप्पड़ जड़ दिया था। इससे पहले वो दूसरा थप्पड़ जड़ती ज़ईम उसकी कलाई जकड़ चुका था। रही हो मेरी जान, इतना ही गुस्सा दिखाओ जितना आज रात हम लोगों को बर्दाश्त कर सको। आज तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ होगा। इतना कि तुम्हारी सोच है। ज़ईम कराया था। तुम जानते नहीं हो ज़हीम, मेरा नाम अब्रिश ज़रान ख़ानज़ादा है। जान दे दूँगी, मगर अपनी इज़्ज़त पर आँच नहीं आने दूँगी। अपनी कलाई छुड़वाते हुए चीखी थी।
वो उसकी नाज़ुक गोलाई पकड़कर मरोड़ने ही लगा था कि गाड़ी के तेज़ हॉर्न पर उसने एक नज़र गाड़ी को देखते लब भींचते उसकी कलाई छोड़ दी थी। "अबरीश, तुम शुरू से ही जज़्बाती हो। ज़रान ने तुम्हें हर बार बचाया है, मगर अब नहीं। तुम्हारे निकाह वाले दिन मैं तुमसे मोहब्बत का इज़हार करने नहीं, बल्कि तुम्हें अगवा करने आया था। बाहर ही मेरी गाड़ी में मेरे दोस्त खड़े थे, तुम्हारी इज़्ज़त लूटने के लिए। मगर ज़रान ने मेरे प्लान पर पानी फेर दिया। फिर तुम खुद ही चलकर मेरे पास आ गई। मैंने सोचा तुम्हें बीवी बना लेता हूँ। हाँ, मगर तुम्हें किसी के बिस्तर की ज़ीनत बनाने का इरादा नहीं था। बीवी बनाकर इतना मार्जिन तो तुम रखती थी, मगर तुम्हारे हाथों बहुत से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का इरादा ज़रूर था। तुम अपने शौहर की खातिर अपनी खूबसूरती का थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल कर ही लेती। ज़ईम ने हंसते हुए आंख मारी। आज मैं अपना हर अरमान पूरा करूँगा। चलो निकाह करके ना सही, ऐसे ही सही तुम्हारे जिस्म से प्यास बुझा लूँगा। ज़ईम ने गुस्से से एक-एक लफ्ज़ चबाते उसकी कलाई जकड़ी थी। ज़ेम, छोड़ो मुझे। अब्रिश ने चीखते हुए अपनी कलाई छुड़वाई थी। वो उसी कलाई से जकड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते उसे अंदर धकेला था। इससे पहले वो गाड़ी से निकलती किसी ने उसकी कलाई जकड़ी थी। अब्रिश करंट खा कर उछली थी। अब्रिश ने पलटते हुए उसे देखा। पिछली सीट पर बेहज़ाद खान को देखकर उसकी सांसें रुकी थी। बेहज़ाद अब्रिश के लब बेयकीनी से हिले थे। वो अपनी मूँछों को ताव देता गहरा मुस्कुराया था। ज़ेम गाड़ी का अगली सीट का दरवाज़ा खोल कर बैठा। उसने पीछे मुड़कर बेहज़ाद खान को मुस्कुराते हुए देखा था। बेहज़ाद खान भी पलकें झपकाते गहरा मुस्कुराया था। वो अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल से अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल से बेहज़ाद खान ने उसी पल ज़ईम के सर पर फायर कर दिया था। ज़ईम उसी पल साकित हुआ था। अब्रिश मुँह पर हाथ रखे चीख उठी थी। इसका यही अंजाम होना था। तुम सिर्फ़ मेरी हो, सिर्फ़ मेरी। वो पिस्टल की नोक को चूमता मुस्कुराते हुए बोला था। अब्रिश उससे दूर होती सहमते हुए दरवाजे के साथ टेक लगा गई थी। ज़रबाब खान, गाड़ी चलाओ। बेसात खान ने गरजते हुए हुक्म देते अब्रिश पर केरी नज़र डाली थी। उसके पैर तक चादर में लिपटी दरवाजे के साथ टेक लगाए थर-थर काँपती, सहमती निगाहों से देख रही थी। वल्लाह! तुम सच में हसीन हो। आज की रात मेरी ज़िंदगी की हसीन रात होने वाली है। वो भारी आवाज़ में बोलते सीट के साथ टेक लगाए, आँखें मौद गया था। हैदर खान, ये सब क्या है? अरहाम खानज़ादा ने सबसे पूछा। हैदर की सख्त नज़रों का इर्तिकाज़ फ़रिश्ते पर था, जो हैदर खान की सर निगाहों पर अरहाम खानज़ादा से दूर होते नज़रें झुका गई थी। फ़रिश्ते ने जल्दी से अपने बहते आंसू आरे से साफ किए थे। अरहाम खानज़ादा ने लब भींचे फ़रिश्ते को देखा था, जो नज़रें झुकाए लरज़ती खड़ी थी। फ़रिश्ते का पूरा बदन इत्तेआश की कैफ़ियत में था। स्याह शलवार कमीज़ पर स्याह दुपट्टा ओढ़े हुए थी। सूट मलकजा और सिलवटों से भरपूर था। रंगत ज़र्द हो रही थी। वो उसकी मौजूदगी पर भी थर-थर काँप रही थी। अरहाम खानज़ादा ने कर्ब से उसे देखा था। उसे तो उसकी मौजूदगी से भी ढारस नहीं हुई थी। हैदर खान, तुम्हारी मोरे ने फरिश्ते को धक्का दिया। फरिश्ते के गाल पर उंगलियों का निशान है। ये सब क्या है? अरहाम खानज़ादा ने लब भींचते पूछा। लहजा काफ़ी सर्द था, मगर आवाज़ उसने दानिस्ता नीचे ही रखी थी। अपनी बहन की हालत देखते वो खुद पर काबू पा गया था। वो जिस तरह खौफज़दा सी खड़ी थी, वो समझ गया था हैदर खान की खौफ से लरज़ नाराज़गी की खौफ से लरज़ रही है। अपनी की बहन की खातिर वो अपने खुद पर गुस्से पर काबू पा गया था, मगर वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था।
मगर वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। मर्द को उसके रिश्ते, उसकी कमज़ोरियाँ कहाँ के नहीं छोड़ती। आज भी अपने रिश्तों, अपनी कमज़ोरियों की के बेपनाह पर बेबसी की इंतहा पर था। अरहम खानज़ादा सुर्ख़ आँखों से अपने गले बालों में हाथ फेर कर रह गया। हैदर खान जैसे इंसान को अपनी बहन को सौंप कर वो बेफ़िक्र हो गया था। इतने वादे, इतने मान से तो वो फ़रिश्ते को रुख़सत करवा कर लेकर गया था। अगर यही सलूक करना था तो उसके पास हवेली में ही बेहतर थी। अरहम ने फिर से फ़रिश्ते पर नज़र डाली, उसका दिल गम से फट रहा था। तुम हैदर खान से क्या पूछता है? हम बताता है तुम्हारी बहन ने हमसे बदतमीज़ी किया। हमारा हैदर को बद्दुआएँ दिया। हमने मारा इसे थप्पड़। रुकिया खानम गुस्से से चीखी थी। खान मैंने बदतमीज़ी नहीं की। मैं आपको बद्दुआ देने का सोच भी नहीं सकती। फरिश्ते कँपकँपाते लबों से बोलते हैदर खान की तरफ बढ़ी। हैदर खान की सर्द निगाहें उसका दिल हिला रही थीं। हैदर खान ने हाथ के इशारे से उसे आगे बढ़ने से रोका था। फरिश्ते डबडबाई आँखों से वहीं पर रुक गई थी। ये देखता रहा खानज़ादा ज़ब्त से रुख पलट गया था। हम पर झूठा होने का इल्ज़ाम लगा रही हो? हम झूठा है क्या? रकिया खानम ने गरजदार आवाज़ में बोलते अपने सीने को जकड़ा था। रकिया खानम को अपने सीने को जकड़ा देखकर हैदर खान ने बेताबी से उन्हें अपनी बाहों में भरा। मोरे क्या हुआ आपको? हैदर ने परेशानी से उन्हें पुकारा, जिनका रंग तैशो इश्तियाल से सुर्ख हो रहा था, जो उनके बीपी शूट होने का अंदिया दे रहा था। अब वो सीने को जकड़ गई थी। हैदर खान की सांसें उलझी थी। डॉक्टर ने सख्ती से हदायत दी थी कि रुकिया खानम को दूसरा अटैक नहीं आना चाहिए। दूसरा अटैक उनकी जान भी ले सकता है। फरिश्ते मैंने तुम्हें क्या समझाया था? कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। मोरे का तुम हर हुक्म मानोगे। मोरे को तुमने किसी बात का जवाब क्यों दिया आखिर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हैदर खान गरजा था। फरिश्ते जो रुकिया खानम की बिगड़ती तबीयत को देखते पहले ही लरजती खड़ी थी। हैदर खान की गर्ज पर वो जी जान से लरज़ उठी थी। खान मैं आपके हुक्म के मुताबिक मोरे की हर बात मान रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक नहीं है। मुझे सुबह से चक्कर आ रहे थे। मैंने ओज़गल से इतना कहा मैं कपड़े कल धो लूँगी। खान और बाहर बारिश भी तो हो रही है। मैं इसलिए मना किया। खान ये इनकार मैंने ओज़गुल को किया था, मोरे को नहीं किया। मैं अभी सारे कपड़े धो लेती हूँ। फरिश्ते की बात पर अरहाम ने बेयकीनी से उसे देखा था। उनकी हवेली में ये सारी काम मुलाजमाएँ करती थी। हैदर खान भी उनके हमपला था, बड़े-बड़े होटलों, ज़मीनों, जायदाद का मालिक। हैदर खान की बीवी यहाँ मुलाजमाओं वाले काम कर रही थी। हैदर हमको पानी पिलाओ, रुकिया खानम ने गहरी सांस लेते वक्त मुश्किल कहा था। हैदर खान ने जल्दी से टेबल पर पड़े जग से पानी गिलास में उड़ेल कर गिलास रुकिया खानम के लबों से लगाया। फरिश्ते रुकिया खानम की तबीयत की खराबी के खौफ से आंखों में आंसू रोके स्टिल खड़ी थी। हैदर खान का सुर्ख तंदु तेज चेहरा बता रहा था वो तैशो शदीद तैशो इश्तियाल में है। फरिश्ते मोरे से माफ़ी मांगो। हैदर खान ने सर लहजे में हुक्म दिया। जी खान जैसे आप कहें। फरिश्ते अपने आंसू साफ करते जल्दी से रुकिया खानम की तरफ बढ़ी। इससे पहले वो रुकिया खानम के कदमों में गिरती अरहम खानज़ादा ने उसे कंधों से थाम कर उसे रुकिया खानम के कदमों में झुकने से रोका था। फरिश्ते ये क्या कर रही हो तुम? अरहम खानज़ादा की आवाज़ में बेयकीनी थी। फरिश्ते सिसक कर रह गई थी। लाला में खान के बगैर इससे आगे वो बोल ही न सकी थी। अरहम ने फरिश्ते के लरजते वजूद को दोबारा से अपने बाजुओं के हल्के में भरा था।
वो जैसे ज़मीन बोस होने को तैयार थी, वो मुश्किल ही अपने मुश्किल ही अपनी कदमों पर खड़ी थी। उसका वजूद पिघले हुए कुंदन की मानी जैसे महसूस हो रहा था। उसका बदन तप रहा था। अरहम खानज़ादा ने मुट्ठी भींचते हैदर खान को सुर्ख आँखों से घूरा, जो स्मार्ट चेहरा लिए खड़ा था। उसे फरिश्ते की हालत नज़र नहीं आ रही थी, या वो फिर देखना नहीं चाहता था। हैदर, इस लड़की को हमारा नज़रों से दूर कर दो। इसको बोलो यहाँ से जाए, वरना हम सच में कुछ कर लेगा। ये है तुम्हारा पसंद। हमने तुम्हारा खातिर इसका बांझ होना बर्दाश्त किया, इसका तलाक याफ्ता होना भी। अगर हम ठीक था, ये तुम्हारा काबिल नहीं है। रुकिया खानम गहरी सांस लेते फंका रही थी। हैदर खान, तुम्हारी नज़रों के सामने फरिश्ते से ये सलूक हो रहा है। उसे बांझ तलाक याफ्ता होने का ताना दिया जा रहा है। तुम खामोश खड़े सुन रहे हो। अरहाम की आवाज़ में गरज नुमाया थी। वो फरिश्ते के लिए लफ्ज़ बांझ नहीं सुन सका था। उसका ज़ब्त का धारा छोटा था। हैदर खान ने लब भींचे अपने मुंह पर हाथ फेरा, मगर उसने अभी भी कुछ नहीं कहा था। हैदर, इस लड़की को हमारा नज़रों के सामने दूर कर दो। उसका भाई को बोलो यहाँ से इसे ले जाए। रुकिया खानम एक बार फिर से फंकारी थी। हैदर खान की खामोशी उन्हें चुभी थी। अरहाम खानजादा की गर्ज पर भी हैदर खान ने उसे कुछ नहीं कहा था, वरना हैदर खान हैदर खान उनके अलावा किसी की ऊंची की आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर, यहाँ तक कि हाकिम खान का भी लिहाज नहीं करता था। खान, रुकिया खानम की बात पर फरिश्ते ने उसे लरजते लबों से पकारा, जो लब भींचे से सपाट बेतासर निगाहों से देख रहा था। ठीक है, मेरी बहन मेरे साथ जाएगी। मैं इसे अब यहाँ किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। हमने सर्द अंदाज में अपना फैसला फरिश्ते, यहाँ से किसी कीमत पर नहीं जाएगी। बीवी है फरिश्ते, मेरी मेरी औरत। तुम उसे किसी कीमत पर यहाँ से नहीं ले जा सकते। फरिश्ते, अंदर जाओ। हैदर खान की भारी आवाज़ गूंजी। जी खान। फरिश्ते ने जल्दी से इस बात में सर हिलाते हुए कमरे की तरफ बढ़ी। हैदर, ये लड़की अगर इधर रुकेगा तो तुम्हारे कमरे में नहीं जाएगा। वो कमरा अब से ओसगल का है। रुकिया खानम फरिश्ते को कमरे की तरफ बढ़ता देखकर, बलबला गई थी। हैदर खान का फरिश्ते को कमरे में जाने का हुक्म देना रुकिया खानम को जलते तवे पर बिठा गया था। ओज़गुल। अरहाम ने नासमझी से ओज़गुल को देखते हैदर खान को देखा, जो लब पीछे खड़ा था। मोरे, वो कमरा फरिश्ते का रहने दे। हवेली में और भी कमरे हैं। ओज़गुल को इनमें से कोई कमरा दे दे। हैदर खान ने संजीदगी से कहा। नहीं हैदर, फैसला आज और अभी होगा। ओज़गुल तुम्हारा बच्चों का माँ बनेगा, इसलिए उसका मकाम भी ज़्यादा होगा। फरिश्ते हवेली का कोई भी कमरा ले ले। रुकिया खानम सद मेहरी से सफाकी से बोली। ठीक है मोरे, मैं और कोई कमरा ले लेती हूँ। मैं अभी अपना सामान निकाल देती हूँ। फरिश्ते ने जल्दी से कहा। हैदर, तुमने दूसरी शादी कर ली है? अरहाम की आवाज़ जल्जलों की जद में आई थी। अगर हमारा हैदर का निकाह है ओज़गुल के साथ इसी हफ्ता। रुकिया खानम की बात पर अरहाम ने फरिश्ते को देखा,
जो उसे देखते नज़रें चुरा गई थी। हैदर, तुम दूसरी शादी कर रहे हो? मैं ये सुनकर शॉक नहीं हुआ। तुम दूसरी शादी कर रहे हो? कोई कोई मर्द अपनी बात, अपने वादों पर कायम रहता है। अगर मैं दूसरी शादी पर कोई बात करूँगा, तो बात हक पर आ जाएगी। शायद औलाद के लिए दूसरी शादी करना तुम्हारा जायज़ हक है। तुम तो दूसरी शादी से पहले ही रिश्तों में तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पा रहे। तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बीवी से ये सलूक हो रहा है। तुम खामोश हो। क्यों खामोश हो? माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। बीवी तो बिल्कुल नहीं ले सकती। मगर बीवी की एक अलग जगह होती है। वो हैसियत एक मर्द को बरकरार रखनी पड़ती है। फ़रिश्ते यहाँ नौकरों की तरह काम करती है। मैं इसके बारे में भी सवाल नहीं करूँगा। वो बहू है इस हवेली की। तुम जैसे रखोगे वो रह लेगी। मगर वो ऐसे ताने सुनते यहाँ पर कैसे रहेगी जिसमें इसका कोई कसूर। फ़रिश्ते माँ नहीं बन सकती, इस हकीकत से तुम बाखबर थे। आज तुम खामोश क्यों हो? अरहम खानज़ादा ने हैदर खान के मुकाबलाते सवाल दागे। मुझसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं रखते। हमारे घर के मामलात में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं तुम्हारा लिहाज सिर्फ रिश्ते की वजह से कर रहा हूँ, वरना हमारी हवेली के ज़नान खाने में कदम रखने की किसी गैर को इजाज़त नहीं है। तुम्हें यहाँ कदम रखने की इजाज़त देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। हैदर खान ने रहाम खानज़ादा को घूरते के लफ्ज़ चबाया था। जाऊँगा तो मैं सही, मगर अपनी बहन को साथ लेकर जाऊँगा। किसी कीमत पर उसे अब यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा। खाम खानज़ादा ने भी जवाबन लफ्ज़ चबाए थे। लाला, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। मैं खान के बगैर नहीं रह सकती। फ़रिश्ते ने नम आवाज़ में हैदर खान को देखते जल्दी से कहा था। तुम कहीं नहीं जाओगी फ़रिश्ते। हैदर खान मर तो सकता है, मगर अपनी इज़्ज़त को किसी गैर बाहर की लड़की के पीछे नहीं छोड़ सकता। हैदर खान ने अरहाम खानज़ादा को देखते तंज़िया कहा था। हैदर खान के तन पर अरहाम का रंग सुर्ख हुआ था और उसका रंग भी तहीन व खजालत से सुर्ख पड़ा था। रुकिया आरा खानम का रंग मज़ीद सुर्ख हुआ था। हैदर खान साफ लफ्ज़ों में जता चुका था वो फ़रिश्ते को कभी नहीं छोड़ेगा। ओज़गुल को भी वो गैर लड़की कह चुका था। उन्होंने जो फ़ैसला करना था अभी करना था। उन्होंने फ़रिश्ते जैसी नहूसत से अपनी हवेली को पाक करना ही था। वो फ़रिश्ते के बाँझपन का साया उस गुल पर पड़ने नहीं देना चाहती थी। हैदर फ़रिश्ते यहाँ नहीं रहेगी, किसी कीमत पर यहाँ नहीं रहेगी। उसका भाई इसे यहाँ से लेकर जाना चाहता है, तो शौक़ से लेकर जाए। हमको लगता है जब तक हमारा और रोज़गुल का शादी नहीं हो जाता, इधर से चले जाना ही बेहतर है। रुकिया खानम ने सपाट अंदाज में अपना फ़ैसला सुनाया। मोरे आपका हुक्म मानते मैं ये शादी कर रहा हूँ। अगर फ़रिश्ते को मैं यहाँ से किसी सूरत नहीं जाने दूँगा, और मेरे कमरे पर भी सिर्फ फ़रिश्ते का हक होगा। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। हैदर की सर्द अटल आवाज़ गूंजी थी। रुकिया खानम ने बेयकीनी से हैदर खान को देखा था। उन्हें पूरा यकीन था हैदर अब इनके किसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। फ़रिश्ते को तलाक भी दे देगा, मगर हैदर खान तो फ़रिश्ते को अपने कमरे से भी नहीं निकाल रहा था। रुकिया जैसी सख्त अनाप्रस्त इंसान तो गुस्से से पागल हो गई थी। उनका बीपी फ़ौरन से शूट कर गया था। उन्होंने गहरे सांस लेते फ़रिश्ते को देखा जो भीगी आंखों से लरजते हुए हैदर खान को देख रही थी।
हैदर खान भी अब उसे ही देख रहा था, चेहरा सरसपाट था, आँखें भी सुर्ख थीं, मगर निगाहों में फ़रिश्ते के लिए गर्मी थी। हैदर खान की आँखों में फ़रिश्ते के लिए शदीद मोहब्बत देख चुकी थी, वो बड़बड़ चली थी। हैदर, ये हमारा हुक्म है, फ़रिश्ते इस हवेली में नहीं रहेगा। रुक़िया ख़ानम ने गुस्से से कहा, मोरे मैंने क्या कहा है आपसे? हैदर खान के लफ्ज़ मुँह ही में थे कि रुक़िया ख़ानम सीने पर हाथ रखकर सीना मसलते हुए सोफ़े पर गिरने के अंदाज़ में बैठी थीं। हैदर खान उनकी तरफ बढ़ा था, दूर रहो हैदर, फ़ैसला करो, तुम्हारा बीवी या हम? रुक़िया ख़ानम ने हाथ के इशारे से उसे रोका। मोरे, ये कौन सी सुध है? जब मैं कह चुका हूँ मैं ओज़गुल से शादी करूँगा तो फिर फ़रिश्ते को यहाँ से क्यों भेजना चाहती हैं? हैदर खान बेबसी से कहते झंझलाया था, हमारा हुक्म है, ये यहाँ नहीं रहेगी जब तक ओज़गुल और तुम्हारा निकाह ना हो जाए। रुक़िया ख़ानम ने स्मार्ट लहजे में मुश्किल कहा था, उनकी सांसें जैसे उखड़ रहीं। खान लब पीछे खामोश खड़ा सुर्ख आंखों से रुकिया खानों को देख रहा था, जिसकी हैदर खान जिसकी आंखों में हल्की सी नमी बांसियां थी। खाला, ये दवाई ले लें। ओस्कुल दवाई और पानी का गिलास लेकर रुकिया खानम की तरफ बढ़ी, जिसे रुकिया खानम ने पानी का गिलास पकड़ते ज़मीन पर दे मारा था। हैदर खान बेबसी से रुकिया खानम को बेबसी से देखते अपनी गनी पेट पर हाथ फेर कर रह गया, चलो फरिश्ते यहाँ से। रहाम खान ने हैदर खान को खामोश देखते फरिश्ते को अपने बाजुओं के हल्के में भरा। खान के बगैर नहीं रह सकती, फरिश्ते ने भीगी आंखों से रहाम को देखा था, चलो यहाँ से। रहाम खानजादा ने हैदर खान को घूरते सर लहजे में बोला। खान, फरिश्ते ने रोते हुए उसे पुकारा था। हैदर ने लब भींचते हुए अपने मुंह पर हाथ फेरा। चलो फरिश्ते, फरिश्ते को हैदर खान की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते पाकर अरहाम अब की बार धाड़ा था। फरिश्ते अरहाम के सार में लरस उठी थी। अरहाम उसे बाजों के हल्के में लिए दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। खान, फरिश्ते ने फिर से सिसकी लेते उसे पुकारा था। अरहाम खानजादा ने अब की बार उसे सुर्ख आंखों से घूरा था। फरिश्ते अरहाम की सर सुर्ख नज़र पर नजरें झुका गई थी। कार में दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी। दाखिली दरवाजे पर रुकते उसने पलट कर एक फिर से हैदर खान को देखा था। हैदर खान जो निचला लब दांतों में दबाए उसे ही देख रहा था। प्यार हमने किया, प्यार तुमने किया। फरिश्ते रोते हुए उसे देख रही थी, वो अब रुख पलट गया था। फरिश्ते अरहाम की बाहों में समाये उसके सीने पर सर रख के फूट फूट कर रो दी। अरहाम ने अपना हिसार उसके गिर्द और मजबूत किया था। उसे अपने बाजुओं के हल्के में लिए वो दाखिली दरवाज़ा अबूर करके हैदर खान ने एक नज़र रुकिया खानम को देखा, जो गहरी सांस लेते सोफे के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे हुई थी। ओज़कुल, मोरे को दवाई दो। हैदर खान सर्द अंदाज में कहता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था।